السلام علیکم ناظرین شام 7 بجے تو قشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برو اخ نظر چن خاص خبرن پہ وزیر اعظم سندس صدارتس مز نئی دلی اندر بہل پائی میٹنگ یوت سانز شامن 8 بج کرن وزیر اعظم قومس خطاب جنگ چھن بالی ووڈ فلمی ہند کان رومانٹک سین جنگ ست تباہی تو بربادی سپدن سابق فوجی سربراہ عمر عبداللہ سند ضلع پلچکن سرحدی علاقن ہند دور صورت حالس ہیچک سام لوکن ست کر کت بات تو ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل بھارت تو پاکستان درمیان جنگی صورتحال پید سپدن پتہ یہ جموں کشیر مز تعلیمی ادارہ بند کرنے آمت تت محکمہ تعلیم طرف ون آمت وادی مز سپد پگہی پہ دوبارہ تدریسی نظام بحال یہ زن ضلع کپور ضلع بارہمولہ تو ضلع بنڈپور کس گریز علاقس مز فی الحال تدریسی نظام معطل روز یہ وادی حوالہ یہ فیصلہ نن آو تت جوم صوبس حوالہ ون آمت جوم صوب کن سرحدی ضلع مز یہ تعلیمی نظام معطل روز تت سپد پگہ دومن ضلع مز تدریسی نظام بحال یمن ضلع مز جومس اندر تدریسی نظام بحال سپد تمن مز ڈوڈا کشتواڑ ریاسی تو رامبند شامل یل زن کٹھوا جموں راجوری پونچھ سامبا تو ادھم پورس مز فی الحال تدریسی نظام معطل روز جموں کشمیر انتظامیہ تو محکمہ تعلیم طرف نن آمت فیصلہ پگہی پہ سپد جموں کشیر ہندین مختلف ضلع مز تدریسی نظام بحال یل زن ضلع بارہمولہ ضلع کشتواڑ تو ضلع بنڈپور کس گریز علاقس مز فی الحال تعلیمی نظام معطل روز ات ست ڈوڈا کشتواڑ ریاسی تو رامبنس مز پگہ تعلیمی نظام بحال سپدت تتہ آسہ کٹھوا جموں راجوری پونچھ سامبا تو ادھم پور ڈسٹرکن مز فی الحال تدریسی نظام معطل وزیر اعظم نریندر مودی سند صدارتس مز آز نئی دلی مز اہم اجلاس طلب کرنا آمت یت مز بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ خارجہ وزیر ایس جے شنکر وزیر قومی سلامتی ہند مشیر اجیت ڈوبال بری بحری تو فضائی کیو ذمہ دارو علاوہ سی ڈی ایسن شرکت کر میٹنگ دوران یہ آپریشن سندور تو موجودہ صورتحالس حوالہ کتھن دل دن آو تت ین ولس وقتس حوالہ لائے عمل تہ ترتیب دن آمت یپر کرن آز 8 بجے آپریشن سندور عمل مز ان پتہ گۄڈنِک پھر وزیر اعظم قومس خطاب یپر آز دوپہرن 2:30 بج نئی دلی مز مشترکہ پریس کانفرنس سانز تہ کرنا آمت یتھ دوران آپریشن سندورس حوالہ تفصیلات فراہم کران ون آو ز بھارتس ات آپریشنس مز کامیابی حاصل سپزمژ یل زن ون آو ز بھارت پورٕ پٲٹھۍ تیار پرٛٮ۪تھ کُنہِ صورت حالُک مُقابلہٕ کرنہٕ باپتھ سابق فوجی سربراہ منوج نروانین آز پونیس مز اکس سیمنارس خطاب کران وونمت ز یہ صدی چھنہ جنگچ صدی کی تو یہ وجہ ز ملکک وزیر اعظم رود ہمیشہ باقی ملکن تہ جنگ نش دور روزنک تلقین کران تاہم پتمن دہن اس جنگ اس پہ مسلط کرنا آو سو دراصل کینچن ملکن ہز نادانی نروانین وون ز جنگ چھ بالی ووڈچ فلم تو نہ یہ فلمی ہند کان رومانٹک سین آسن بلکہ جنگ ست تباہی تو بربادی سپدن یم نش اس لوب روزن پز War is not romantic. It is not your Bollywood movie. It is very serious business. And war or violence should be the last thing that we should resort to. And which is why our Prime Minister had said that this is not an era of war. Although wars will be forced upon us by unwise people, but war should not be what you cheer for. Again, people are asking that why did we not go for all-out war? But as a military man,
if ordered, I will go to war. But that will not be my first choice. My first choice will always be diplomacy. How to settle differences through dialogue and not let it reach the stage of armed conflict. We are all equal stakeholders in this very important thing called national security. And secondly, we should try to resolve all our differences through dialogue, not only between countries, but even amongst the differences that we have amongst ourselves, whether it is within the family or between states, between regions, between communities. Violence is not the answer. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ آز سرحدی ضلع پنچک دور کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ کابینہ وزیر تو انتظامیہ دویم افسر تہ موجود اس دورس دوران یہ تمو پید سپدمت صورت حال سامع تب تمو مار سپدمتن لوکن ہندین لواحقین ست تعزیت اظہار تہ کورمت یل زن دورس دوران میٹنگ ہند سانز کرنا آو یت مز عوامی نمائندوں انتظامی کے افسروں سول سوسائٹی ہند ذمہ داروں شرکت کر میٹنگ دوران یہ کیا معاملہ وتلاونہ آئی تب عمر عبداللہ لوکن یقین دتمت تین طرف وتلاونہ آمت جائز مطالبہ پور کرنس حوالہ سنجیدہ قدم تلنے یت زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنس مز تہ آسانی سپدی دیکھا جائے تو جنگلی ماحول بنا ہوا تھا. اگر کوئی علاقہ باہر کی شیلنگ اور بمباری کے لحاظ میں آیا اور بہت عرصے کے بعد پہلی مرتبہ خود شہر کے بیچوں بیچ بمباری ہوئی. اس میں ہماری قیمتی جانیں جو ہیں وہ ہم نے گنوائیں. آج یہاں پہ آنے کا میرا مقصد پہلے تو میں نے کوشش کی کہ ان گھروں میں کم از کم میں پہنچوں جہاں یہ سب سے بڑا سامنا پیش آیا. اس کے بعد یہاں کی سول سوسائٹی سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے پنچ کے لوگوں کو مبارک کیا جو اس مشکل دور میں انہوں نے ہندو مسلم سکھ اتحاد اور بھائی چارے کا جو ماحول ہے اس کو قائم و دائم رکھا. اب آگے جا کے دوبارہ اگر اس طرح کے حالات بنے تو اتنا جانی نقصان نہ ہو اس کے لیے کچھ مشورے کچھ سجھاؤ سول سوسائٹی کی طرف سے ہمیں ملے ہیں اور ان پہ ہم عمل جو ہے کرنا شروع کریں گے. عمر صاحب اس شیلنگ کے دوران کسی ایک مذہب کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ جس طرح پنچ کے لوگوں نے ہندو مسلم سکھ اتحاد کا جو ثبوت دکھایا ان لوگوں کی بمباری بھی اسی طرح رہی. گردواروں کے نزدیک مندروں کے نزدیک ہمارے مدرسوں اور درگاہوں کے نزدیک اندھا دھند ان کی فائرنگ رہی. چلیے وہ کس طرح ایک چیز اور ہے کہ پائیں گے مجھے عمر صاحب پاکستان کی نیت پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں. ان کی نیت اب میرے پاس کون سی ایسی جادوئی چھڑی ہے کہ میں اس چھڑی کا استعمال کر کے ان کی نیت کے بارے میں آپ کو جواب دے سکوں. ان کی نیت کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو وہی کہہ سکتے ہیں. ان کی نیت میں تو صرف جو زمینی حالات ہیں ان کو دیکھ کے بات کر سکتا ہوں اور فی الحال جو خبریں آ رہی ہیں اب لگ بھگ 24 گھنٹے ہو گئے سیز فائر جو ہے وہ لگ بھگ قائم اور دائم ہے. پاکستان کی آرمی ایک چیز اور کہہ رہی ہے کہ انڈین آرمی نے گردوارہ کو ٹارگٹ کیا. بہت بڑا فالس پروپیگنڈا جو 2 دن سے اب وہ تو فالس پروپیگنڈا کریں گے. حقیقت کیا ہے اصلیت کیا ہے وہ آپ جانتے ہو میں جانتا ہوں دنیا جانتی ہے.
अब इस हकीकत को वो तस्लीम करें ना करें, मैं इसमें क्या कहूँ। सर, जम्मू कश्मीर सरकार कंपनसेट किस तरीके से कर रही है जो डैमेज हुआ है? अभी तक तो हम लोगों को बचाने में लगे रहे। अब जबकि सीज फायर चल रहा है, सीज फायर को चले हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हर ज़िले में, पूंछ, राजौरी, बाकी ज़िले जहाँ जहाँ शेलिंग हुई है, जम्मू वगैरह, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर, सब डीसीज को वाज़ेह हिदायत दी गई है कि वो अपनी टीम कायम करें। उन टीम्स में जो है इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स भी रखें और जहाँ जहाँ शेलिंग का असर किसी स्ट्रक्चर पर हुआ है उस स्ट्रक्चर की असेसमेंट करें, जो डैमेज हुआ है डैमेज असेस करें। डैमेज असेसमेंट के बाद एक बाज़ाब्ता एक परफॉर्मा के तहत इन्हें हम मुआवजा देते हैं। उनको तो अब कोशिश करनी चाहिए वापस आने की, जाहिर सी बात है। शुमाली कशीर हिंद जिले वारमुल कन सरहदी इलाकन मज ये सरहदी कशीदगी दौरान लूक महफूज जायन कुन मुंतकल करने आमद तज आज यम लूक दोबारा घरन कुन वापस सोजनस हवाले इंतजामिया तरफ कदम तुलना आमुत यदि यम लूक घरन वापस गसनस दौरान खुश नजर गसान ताहम सरहदी कशीदगी हुंद खौफ साफ यहंदन बुथन पे नजर गसान यल जन यमो लूको तरफ दशवन मुल्कन हंदन सरबराहन मांग करना आई ज सरहदी कशीदगी खत्म करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन यमन लूकन हज जिंदगी मुतासर सपदे। क्योंकि बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई, उसके चलते हुए जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया, मैं अपने गांव की बात करूं, 500 से 600 लोगों को वहां से निकाल के शिफ्ट किया गया और उनकी जो इंतजामात किए गए थे डिग्री कॉलेज बारामूला में, बाकी जगहों पे, इंडोर स्टेडियम्स जो भी कॉलेज हैं उनमें, क्योंकि सरहदी इलाके बहुत ज़्यादा हैं, उड़ी में बहुत सारे गाँव हैं जिनमें आप जिक्र करें, आप वहाँ देखें सिलीकोट है, चरुंडा है, बलकोट है, उसके बाद घरकोट है, सुल्तान डकी, कमलकोट, बहुत सारे ही गाँव लगभग LOC के आसपास पे हैं। तो उसके चलते यहाँ रेस्क्यू में शुक्रिया अदा करूँगा सबसे पहले हमारे जो मिंगा शरफे साहब का कि उनकी बदौलत इतनी चीज़ें पॉसिबल हो पाई, हमारे SDM उड़ी के कारण। बाकी जो लोग भी इस इंतज़ामिया में लगे रहे, उसके चलते जो लोग यहाँ तक पहुँचे, आज लोगों की घर वापसी हो रही है ताकि लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पनाह ली हुई थी, लगभग मैं कहूँगा उड़ी से 20 से 25 गाँव के ऐसे लोग थे जो हर गाँव से लोग यहाँ पहुँचे थे और उड़ी का शायद ही कोई गाँव हो जहाँ से लोग निकल के यहाँ पे नहीं आए हुए थे। तो मैक्सिमम यहाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी यहाँ बैठ के उनको वापस पहुंचाया जा रहा है, वो अपने अपने घरों में जा रहे हैं और कुछ सिक्योरिटी का भी कुछ रीज़न है और साथ में कुछ प्रिकॉशंस जो बताए गए हैं कि कुछ ऐसे एरियाज हो सकते हैं जहाँ पे शेल्स पड़े होंगे, तो उसके चलते हुए कुछ लोगों को वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसके बाद उनको वहाँ पे भेजा जा रहा है। जी देखिए बिल्कुल, अभी तक हमारे कुछ जो गाँव हैं आसपास के जहाँ पे हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, तो उन्होंने बताया उनके लगभग 10 से 12 गाँव हैं जिनको सैनिटाइज किया गया है और वहाँ पे चेकिंग कर दी गई है इन्वेस्टिगेट करके। जी ये बहुत बड़ा स्टेप है हमारी कंट्री की तरफ से भी, हमारी इंडिया की तरफ से कि ये स्टेप लिया गया, उनने अपनी आवाम को चुना और ये बहुत खुशी की बात है कि सब वापसी हो रही है, उड़ी की तरफ सब जा रहे हैं, क्योंकि 7 तारीख हम नहीं भूल सकते, वो 7 तारीख का मंजर हम नहीं भूल सकते जब 7 तारीख को वो स्टार्ट हुआ था और लोग अपने घरों से निकलकर अपनी जान बचा रहे थे। उस टाइम पे वो रात और वो तारीख हमारे लिए बोलते ना वो दिल में छप गई है। और अभी जो स्टेप लिया गया है हमारी इंडिया की तरफ से कि अब नहीं, अब ख़त्म सारी चीज़ें और लोगों को अपने घरों की तरफ रवाना किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बोलते ना, मैं वही बात फिर से बोलूँगी कि बाहर के लोग जो हैं मतलब अभी सारे बैठकर सिर्फ ये बोलेंगे कि वॉर करो वॉर करो वॉर करो, लेकिन बॉर्डर एरिया पे जाकर देखो जो गरीब शख्स है जिसने अपना घर एक एक पैसे से जमा करके मजदूर होते हैं जो अपनी मेहनत से वो घर बनाते हैं, आज वहाँ जाकर देखो कि उनका घर ही नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए तो यही है कि कहा गया है कि अब वॉर जो है वो रुक गया है
और अपने अपने घरों के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी रोका भी गया है क्योंकि सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले देखा जाएगा सारी चीज़ें अच्छी तरह, क्योंकि शेलिंग हुई है, कहाँ पे क्या है हमें नहीं पता है, इसीलिए जो ये स्टेप उठाया गया है कि अभी के लिए फ़िलहाल आप एहतियात रखो, उसके बाद आप अच्छे से अपने घर की तरफ रवाना होना। ये बहुत बड़ा स्टेप है। मेरी यही अपील रहेगी कि हाँ, हमें बहुत दुख है कि पहलगाम अटैक जो हुआ है उसमें जो जिनकी डेथ हुई है वो भी हमारे ही भाई हैं, और हाँ, उनको सज़ा मिलनी चाहिए जिनने ये चीज़ की है, लेकिन उसकी वजह से आप उन लोगों को सज़ा भी दे रहे हो ना जो लोकल हैं, उन लोकलों को तभी पूछो ना जो बहुत गरीब हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि बात करके जो चीज़ हल हो ना, उसको जंग करके ना किया जाए। जी, अमन रहना चाहिए। और मैं एक और बात यहाँ पे पूरे अवाम को बोलना चाहूँगी कि हाँ, उड़ी में अभी बहुत डिस्ट्रॉय हुई हैं चीज़ें, घर किसी के तबाह हुए हैं, लेकिन जब हम 2005 की बात करेंगे, जब एक ज़लज़ला हुआ था, पूरा उड़ी तबाह हुआ था, मैं एक ये पॉजिटिव मैसेज सबको देना चाहूँगी कि जब हमारा उड़ी तबाह हुआ था उस टाइम, तब भी हम खड़े हुए थे, और इंशाल्लाह जब हम वापस जाएंगे हम अपने उड़ी को वापस वो उड़ी बनाएंगे जो बहुत खुश और लोगों में माना जाता था वो उड़ी, और इंशाल्लाह हम बनाएंगे, लेकिन हमें पैनिक नहीं होना है, हिम्मत से। तुंद बारे खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। भारत तो पाकिस्तान दरमियान कशीदगी बढ़ने पत ये श्रीनगर एयरपोर्ट मुकम्मल पे बंद कर आमुत तत वन पगह पे सपद श्रीनगर एयरपोर्ट पे एयर ट्रैफिक दुबार बहाल, ये जन हज कमेटी हिंदो जिम्मेदारों तरफ वन आव आजमीन मदीना मुनव्वरा कुन रवान करनस हवाले त संजीदा कदम तुलन आमद। हमारी टोटल 11 फ़्लाइट्स थी श्रीनगर एम्बार्केशन से, जिसमें 3,378 के करीब हुज्जाज जा रहे थे। उसमें से एक ही फ़्लाइट हुई जिसमें 178 हुज्जाज चले गए। तो इसके बाद हमारी 10 फ़्लाइट्स हैं जो डिस्टर्ब हो गई, उसमें से 7 फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई। तो अब 3 फ़्लाइट्स जो हैं 14 और 15, 14 की 2 फ़्लाइट और 15 की 1 फ़्लाइट वो शेड्यूल्ड है। इंशाल्लाह वो फ़्लाइट्स इंशाल्लाह 14 और 15 तारीख को टेक ऑफ़ करेंगी। तो इसमें जो हुज्जाज किराम है 14 को पहली फ़्लाइट की उनसे इस्तिताअत है कि वो सुबह 6 बजे 6 से 6:30 बजे हज हाउस रिपोर्ट करें, और जो दूसरी फ़्लाइट है उनके हुज्जाज किराम को 9 बजे के लिए मदऊ किया गया, 9 बजे वो हज हाउस रिपोर्ट करें। जी, हमारे टोटल 3,622 हुज्जाज किराम हैं जम्मू कश्मीर से। इनमें से 480 जो हैं वो दिल्ली एम्बार्केशन से चले गए हैं, मुंबई से 10 जा रहे हैं और हैदराबाद से 2 जा रहे हैं। इसके अलावा जो लद्दाख के हैं वो 242 वो श्रीनगर एम्बार्केशन से जा रहे हैं। टोटल हमारे 3,372 जो हैं वो श्रीनगर से जाएंगे। इसमें से अभी 2 फ़्लाइट्स में 14 को 320 और 320 यानी टोटल 640 हुज्जाज किराम श्रीनगर से 14 तारीख को जाएंगे। इसमें हमें अब जो एक फ़्लाइट कैंसिल हुई इसका भी हमें लैंडिंग स्पेस देखनी पड़ती है, और फर्दर कंट्रैक्ट वहाँ मदीना में, क्योंकि यहाँ से जो हुज्जाज जा रहे हैं मदीना जा रहे थे, तो उनका कंट्रैक्ट वगैरह नया करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 दिन लग सकते हैं उसको शेड्यूल को फिर आने में। अलबत्ता 12-15 का हम देख रहे हैं, अगर 15 में हो सकता है कोई एक फ़्लाइट एडजस्ट हो जाए 15 की तारीख, तो वो उसका ऐलान इंशाल्लाह कल किया जाएगा। अब जो हुज्जाज किराम अब रह गए जो अभी जिनका शेड्यूल अभी नहीं आया, तकरीबन 2,500 के 2,500 के करीब हुज्जाज किराम हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो परेशान ना हों, अफवाहों पे नज़र ना दें। तो इंशाल्लाह सबका शेड्यूल आ जाएगा, सब आज़मीन जो हैं वक्त पे पहुंच जाएंगे। हमारे पास काफ़ी अभी वक्त है, 1 जून तक हमें हुज्जाज किराम को वहाँ पहुँचना है। अभी हमें तकरीबन 18-19 दिन हैं, तो इंशाल्लाह सबकी फ़्लाइट शेड्यूल हो जाएंगी, और इंशाल्लाह सब जो हैं। काबीना वजीर जावेद अहमद राना वोनमुत ये सरहदी कशीदगी दौरान पुन चिकन सरहदी इलाकन में सटा नुकसान सपुत तक वजीर आला उमर अब्दुल्लान आज यमन इलाकन हूं दौर कोरमुत या दौरान तमो सूरत हाल सामने सिलजन तमो वोन जे सरकार तरफी मुतासर लूकन हिज पापरजई बाबत पहत का कदम तुलने। सीज फायर वायलेशन की वजह से पुंछ की धरती ने बड़ा नुकसान उठाया, इसके लिए सीएम साहब बजाते खुद यहाँ अफसोस करने आए। और दूसरी बात ये कि जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उमर अब्दुल्ला साहब का, कि कोई भी मसला जो है, जंग जो है वो कोई किसी मसले का हल नहीं है, जंग खुद एक मसला है। बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल किया जाना बेहतर है। हम दोनों ममालिक के सरबराहान को मुबारक करेंगे कि वो बातचीत के टेबल पे आने की उन्होंने
ख्वाहिश जाहिर की है। अल्लाह करे एक मुस्बत तरीके से बातचीत हो और ये जो कज़िया है फारबल के लिए इसका हल हो जाए। यहाँ आज उमर साहब जो आपने सवाल किया है, उमर साहब यहाँ आए, एक तो उन लोगों से जिनके अजीज़ व कारब इस जंग की भेंट हो गए, शहीद हो गए, उनको उनके लवाकीन को मिलने के लिए, आत्मपुरसी करने के लिए, और जो अमलाक को नुकसानात यहाँ हुए हैं वो देखने के लिए वज़ात खुद आए और सिविल सोसाइटी की मीटिंग भी ली। कुछ इश्यूज़ भी डिस्कस हुए और जिनके लिए सीएम साहब ने यहाँ कुछ बातें यहाँ कही हैं जो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में उनको हम पूरा करेंगे। जैसे कि इस बार काफ़ी नुकसान हुआ, तो इसको देखते हुए आगे के लिए कुछ ऐसा सरकार कर रही है कि ताकि कम से कम नुकसान। मैंने वही बात कही कि एक पूरी तरीके से लायामुल बनाया जाएगा। हम लोग जो हैं वो बॉर्डर जोन में हैं और इस पे सब लोगों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी कुछ मशवरे दिए हैं और उमर साहब ने कुछ बातें जो हैं वो उनकी तरफ इशारा किया है। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम कैबिनेट में वो इश्यूज़ ले जाएं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसके हल के लिए एक मुस्बत इंतज़ाम क्या हो सकते हैं उसके लिए हम इंशाल्लाह करेंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त कौशर खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।